ഞാൻ പറയുന്നത് സാറൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നടന്നു വെച്ചിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലം സാറ് ഞാനായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. എനിക്കതൊരു കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലോ? തൻ്റെ ഈ കഥയൊക്കെ കേട്ട് ഞാൻ പേടിക്കണം. സാറെന്തിനാ അയാളെ കൊല്ലാൻ നോക്കി? ആ പേഷ്യന്റ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിന്റെ ഒക്കെ കളി ഇപ്പൊ തീരും. ആ ഡൈസിന്റെ കിട്ടുന്ന ദിവസം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഡൈസ് കിട്ടരുത്. കിട്ടിയാൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറണമെന്നില്ല. നിനക്ക് നാളെ വരെ സമയം. ये जानबूझ के कर रहा है सर. നോക്കിയടാ ഇവിടെ. എടാ ആ രഞ്ജിത്ത് സാർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല. എടാ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറണമെന്ന് ജീവിക്കാൻ തന്നെയാ പ്ലാൻ. അല്ല ഇയാളെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എടാ ഡയസ് ഷാജി സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഡയസ് എടുക്കാൻ അയാൾ എന്നിട്ട് അടിപൊളി. ഒരുത്തം പോലും അവിടെ നിന്നില്ലല്ലേ. ഇവിടെ രഞ്ജിത്ത് സാർ എന്തായാലും അവളോട് എല്ലാം പറഞ്ഞായിരിക്കും. അതാ ഇങ്ങനെ. അയ്യോ എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം. സാറിന്റെ ഭാര്യക്ക് സാറിനോട് സംസാരിക്കണം. ഡിവോഴ്സിന് നീങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞല്ലേ? അയ്യോ അതങ്ങനെയല്ല. എന്താ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നാൻ? കുട്ടികളല്ലേ. എപ്പോ തൊട്ടാ ഇങ്ങനെ രണ്ടായി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്? നമ്മുടെ വീട് അല്ല എന്നെ പോലെ എക്സൈറ്റിംഗ് അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ കൂടെ 10 കൊല്ലം മുന്നേ എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഇന്നും എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല. എന്തൊക്കെ വന്നാലും നിങ്ങളെ ഡിവോഴ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഞാൻ നിന്റാണ്. ഇതെന്റെ കൊച്ചൊന്നുമല്ല. കോളേജിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷാജി സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. 1-2 മാസം മുന്നേ വരെ എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞാണല്ലോ. ഇപ്പം നിർത്തി. പല ബാഹ്യശക്തികളുടെ ഇടപെടലുകളാൽ മനുഷ്യ ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ? ഒപ്പുണ്ട്, ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് കൊടുക്കായിരുന്നു. തീർന്നു. ഒരു കുഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ 2 പേരുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? ഈ കുട്ടി ആളിലല്ല എന്ന്. सोचो बता दे उधर से थप्पड़ मारी भगा देगी. लगा था मुझे. വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് വൃത്തിയായി കാണിക്കുന്ന പട്ടി. എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബം വലുത്. ഇയാളെ വിശ്വസിക്കാമോ? എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യനെ കാണും.
अच्छा मुझे तो लग ही रहा था। ഇപ്പൊ രഞ്ജിത്ത് സാർ അറിയാതെ നമ്മൾ ഈ കളി തീർക്കണം. അതിന് ആദ്യം അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താക്കോല് സംഘടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ധാരണയില്ല. ഇപ്പൊ ഇനി എന്താ എടാ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഷാജി സാർ ജില്ലാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അയാളെ പിടിച്ചു നിർത്തണം. ഞങ്ങളോ? എടാ ഒന്ന് ചെയ്യടാ. ഇവിടെ വെച്ചാടാ നമ്മുടെ Exciting debate on the topic: is social media a boon or a bane? On the affirmative side, we have Nisha. वो है तो पीछे ഇതെന്താ കൊള്ള സംഖ്യതോ? ആ എടുക്ക് സാറേ, സമയമില്ല. इतनी आसानी से कैसे दे दिया उसने? മറ്റേതവിടെ മറ്റേത് कहीं उसके पास तो नहीं दूसरा? എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായില്ലടോ അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന്. എടോ ഡയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രഞ്ജിത്ത് ബഹുവചനം വാസുദേവൻ. മണ്ടം കൊണാപ്പി. എടാ കാട്ടുകളി ഏകവചനം ബഹു എത്തിക്കാം, നമ്മുടെ പ്ലാൻ പൊളിഞ്ഞു. നമ്മുടെ പ്ലാനാ इसी के पास है शायद। പറയുന്നതായിട്ട്. ओ ये थोड़ा बेवकूफ है। वो भी नीचे गिर गया। എനിക്കെന്റെ കുടുംബം വേണം. സാർ എന്നെ അങ്ങ് അവനും പോയി, ബോർഡും പോയി. सब ले लिया उसने। क्या बेवकूफ है ये। दूसरा डाइस भी शायद इसी के पास होगा। अब वही खेलेगा उस गेम को। എടാ ആ രണ്ടാമത്തെ वो छीन लिया उसने। പൊളിക്കാം അടി. वो भी वहीं जा रहा है। കിട്ടിയാ? എടാ നിങ്ങൾ ഡൈസ് ഒന്ന് തപ്പി. चले गया वो वही। मुझे लग रहा है इसी के पास होगी, तभी तो शराब तो उस नहीं पीने बोर्ड पे वाला। लेकर जा रहा था। पकड़ लिया उसने। मेरी पावर भी बहुत आ गई ना इसमें अब। ताकत उसमें वैसी वाली रंजीत वाली मिल गया उसे मिल गया वो। वो वो मार तो नहीं देगा उनको। कोशिश तो वही कर रहा है।
चाचा दारू पी रहा है यार अब उसे चढ़ेगा नशा हाँ कुछ नहीं कर पाएगा वो ये सही किया उसने तो जीतना भी तो पड़ेगा ना उनको गेम फिर से आ गया वो। സാറേ ദേവി ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കളി അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. तो उसने शराब पी है ना, उस वजह से वो ज्यादा वो नहीं कर पा रहा, वरना तो क्यों शराब के नशे में भी लड़ी रहा है എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഇതൊന്ന് തീർക്ക് പ്ലീസ്. നീ തീരും. പ്ലീസ് ഒന്ന് തീർക്ക്. क्यों इसके बाद अच्छा उसको दिया अच्छा वो गेम पूरा हो गया बॉडी में। अब वो अपनी सही बॉडी में रहेंगे ना इसलिए कूदा हुआ अच्छा अच्छा तो मर गया वो शायद अब आ गया अपनी बॉडी वापस ടാ. ഞാനാടാ. जब मुझे राय दिया ജസ്റ്റ് ഒരു 30 അടി ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് തല പിന്നെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് നടിച്ചേ. ഒരു 40 ബോധം വരുമെന്നോ? സ്വബോധം ഇനി വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ? കറക്റ്റ്. മെഡിസിൻ പിടിക്കണം. അല്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. പോട്ടെ, ഷായി സാറ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാടാ. ഡൈസിന്റെ സിംഗുലറും പ്ലൂറലൊക്കെ ഡൈസ് തന്നെയാ. അപ്പൊ ഡൈസസ് അല്ല. ആ, അതിന്റെ കാര്യത്തൊരു തീരുമാനമായി. ലെസിങ് കൊണ്ട് വന്നാൽ മതി. റിലേഷൻഷിപ്പിനൊരു ചാൻസ് കൂടെ കൊടുക്കാന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയായാലും ഞാൻ പറയണം, നീ കേക്ക്. നീ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടത്, ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഒട്ടും എക്സൈറ്റിംഗ് അല്ല, സ്വയം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ. പക്ഷെ ഭായത്തിന് അയാൾക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടി, നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം. अब आ गया अपने घर वापस ജീവിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് എനിക്കുള്ള ആ കാരണം നിങ്ങളാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അതങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ, ആ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഊള ലിജോ അല്ല കേട്ടോ നിന്റെ ആള്. നീ ഇത്രയും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എന്നോട് ആദ്യമായിട്ടാ पिंकी पिंकी पोंकी ആദ്യമല്ല, അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായി? എന്താടാ അവള് പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഭയങ്കര മെച്ചോർഡാണെന്നും മറ്റേ പറഞ്ഞല്ല. ഏത് എടാ, അങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർമാനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഭൂമി തിരിച്ചിറക്കി ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ അവളെ കണ്ടുപിട്ടി പ്രേമിച്ച്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഏതാ മറ്റായിരുന്നു കേട്ടാ, ഏതാ 24 സൂര്യയുടെ വാച്ച് എന്റെ അല്ലേ ബെറ്റർ. तो ये थी कलम फिल्म और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी. बहुत इंटरेस्टिंग. कुछ मतलब अलग तरह की कहानी थी ना फिल्म की. हाँ नॉर्मल जो फिल्में आती है उनसे काफ़ी हट की थी.
क्योंकि इस तरह की फिल्म मतलब देखी नहीं हमने, खासकर इंडियन फिल्म, मतलब चाहे वो कोई साउथ फिल्म हो या फिर कोई हिंदी फिल्म हो। इस तरह की फिल्म मतलब इंडिया में शायद कोई है नहीं, मतलब मैंने तो देखी नहीं कोई इस तरह की फिल्म इंडियन फिल्म ना। ऐसी मूवी साउथ में ही बन सकती है। स्पेशल कौन सी इंडस्ट्री है ये? मलयालम फिल्म, मलयालम इंडस्ट्री में ही बनती है ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी। हाँ मलयालम में मतलब काफ़ी अलग अलग जॉनर की मूवी बनती है। हाँ मूवीज बनती है, और वो कुछ मतलब नया करने की कोशिश करते हैं। भले इसका जो वाला कॉन्सेप्ट है वो जिस तरह से उनकी जो बॉडी है वो मतलब स्विप हो जाती है, और वो वाला कॉन्सेप्ट बोल्ड वाला, हाँ ये मतलब थोड़ा उससे लिया हुआ उन्होंने जुमांजी फिल्म से। हाँ कॉन्सेप्ट लिया है पर कहानी अलग है, स्टोरी पूरी यूनिक है। और स्टार्टिंग में जैसे मूवी शुरू हुई तो मुझे लग रहा था कि वैसे वॉर वाली होगी, जिस हिसाब से दो महाराजा के बीच में वॉर बताई गई, लेकिन बाद में समझ आ रहा था कि उस मतलब जो बोर्ड था उसकी वजह से ही कुछ होगा मूवी में। लास्ट में बताया था ना, पर ये नहीं था कि वो प्रेजेंट टाइम की कहानी होगी। मैं सोची थी एक बार कि तब की ना हो, पुराने ज़माने की राजा महाराजा के टाइम की कहानी। जब शुरुआत हुई थी मूवी की तो मुझे ऐसे लग रहा था, लेकिन तब बाद में जैसे मूवी थोड़ी स्टार्ट हुई तो पता चला प्रेजेंट टाइम की स्टोरी है, और किस तरह से, पर उस ये नहीं बताया गया कि उसने निकाला कैसे। जब वो बताया था ना निकाला कैसे, पर ये नहीं बताया कि उसको पता कैसे चला उस प्रोफेसर रंजीत को कि वहाँ पे है वो नहीं दिखाया उन्होंने। हाँ पर ये था कि उसी ने निकाला था उसे, रंजीत ने। हाँ कैसे निकाला उसने वो तो दिखा दिया था, कैसे निकाला और कैसे उसने मतलब कंट्रोल। पर कहानी का उससे कोई लेना देना नहीं था ना। किससे? क्योंकि मेन कहानी यही थी कि वो उसको निकालने के बाद क्या क्या कर रहा है। हाँ स्टोरी में वही था मेन। हाँ बाकी उसको नहीं भी दिखाया उन्होंने तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कहानी का तो मतलब मेन चीज़ वही थी ना कि वो जिस तरह से उसने वो निकाला है वो बोल्ड, और उसके बाद क्या क्या वो मतलब गलत चीज़ें कर रहा है, तो वही था कहानी में। तो मतलब काफ़ी मज़ेदार थी फिल्म, इंटरेस्टिंग थी। और जिस हिसाब से इसमें कॉमेडी थी, मतलब पूरी कॉमेडी में ही है ये मूवी ना। हाँ पूरी कॉमेडी ही है। जिस हिसाब से स्टोरी मतलब सिंपल तरीके से शुरू हुई थी, स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था कि इतनी फनी होगी, लेकिन धीरे धीरे जब उसके बाद फनी होने लगी थी जब वो उन्होंने बोर्ड लिया और उनकी बॉडी एक्सचेंज हुई, शिफ्ट हो गई थी एक दूसरे में। हाँ तब से थोड़ा वो जो कॉन्सेप्ट है और मज़ेदार हो गया था। पहले तो मतलब वहीं से इंटरेस्टिंग हो गई थी फिल्म, जब उसने वो देखा कि किस तरह से वो अपना बोर्ड निकालता है और फिर हाँ कैसे वो मैजिक कंट्रोल करता है, ब्लैक मैजिक करता है, वो किसी दूसरी की बॉडी को कंट्रोल करता है। साजी की बॉडी को जिस तरह से वो कंट्रोल करके उसे मतलब एचओडी की पोस्ट से हटा देता है। अब उस टाइम कैसे ड्रामा करता हो कि मतलब साजी सर को इतना एक्सपीरियंस है तो इन्हें मतलब एचओडी बनना चाहिए। फिर वो अंदर जाके जिस तरह से ब्लैक मैजिक करता है, फिर उसकी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब ब्लैक मैजिक भी नहीं पर उस गेम के जरिए। हाँ मतलब है तो ब्लैक मैजिक ही है वो एक टाइप का कि तुम बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो। तो फिर किस तरह से मतलब हटा देता है छोटी की पोस्ट से उसे। वहाँ से फिल्म बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। फिर जिस तरह से उस लड़के ने वो देखा था तो फिर वो अपने दोस्तों को बताता है, और फिर तो वो प्लान बनाते हैं कि हमें मतलब उसे रोकना चाहिए। सब कुछ वैसे ठीक हो गया था जिस तरह से उसका बैग लेके गए थे ना। हाँ सब ठीक हो गया था, लेकिन गड़बड़ यही हुई कि उन्होंने बैग वो वहीं छोड़ दिया था, दूसरा बैग, और फिर वो उसे लेने गए। हाँ। तब उसने देखा, फिर उसे पता चल गया था कि किसने बोर्ड निकाला उसका। अगर वो एक बार वो कर देता नहीं, पर जिस तरह से वो उनके पास बोर्ड था तब भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। की तो उसी के पास थी, उसकी गली में की तो उसी के पास थी। फिर भी क्या कर सकते थे, पर ये था कि उसे पता नहीं चलना था फिर किसने कौन ले गया। नहीं मतलब मूवी जैसे से आगे बढ़ती वैसे से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और फिर किस तरह से वो स्ट्रगल करते रहते हैं उस डाइस को लेने के लिए। और जब उनकी बॉडी एक शिफ्ट होती है तो जिस हिसाब से वो एक्टिंग करते हैं एक दूसरे की, मतलब बॉडी उस किसी दूसरे की है और उस हिसाब से एक्ट करना जिस हिसाब से आपका रोल है, तो लग ही नहीं रहा था
मतलब सही में ऐसे लग रहा था कि ये शाजी होगा, ये जतिनी होगा और ये रंजीत ही होगा। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी, बोलने का तरीका चेंज हो गया था, तो वो तो बहुत ऐसे है। जुमांजी में भी यही चीज़ होती है। हाँ। और फिर मतलब काफ़ी मज़ा आता है फिर फिल्म को देखने में ना। और इसमें भी वैसा ही होता है। हाँ। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है मूवी। बहुत मज़ा आया। और जिस तरह से वो डाइस को लेने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, मतलब सारी प्रॉब्लम वैसे उसी की वजह से होती है, शादी की वजह से। हाँ, वो की दे देता। क्योंकि वो जब वो उसकी बॉडी में जाता है, हाँ। रंजीत की बॉडी में, तब उसका मन नहीं करता है कि मैं इसकी बॉडी को छोड़ूं। और फिर वो तैयार ही नहीं होता डाइस देने के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो अब उसको थोड़ा मतलब उसके मन में इमोशंस आ गए थे। उसके बाद ही वो तैयार हुआ है। हाँ। क्योंकि अगर उसकी वाइफ वहाँ ना आती तो तब वो नहीं ले पाता है। हाँ। मतलब तब वो देने के लिए तैयार नहीं होता उस डाइस को ना। वो ऐसी नक्शा था जब वो वहाँ जाता अपने घर, पर वो रंजीत की बॉडी से गया था, तब वो आखिरकार सच बता देता उसे। अब फिर वो उसको हक जिस तरह से गले लगाता है फिर उसके लिए तो दूसरा ही आदमी था वो। तो काफी इंटरेस्टिंग सीन है इसमें ना, बहुत सारे हैं इसमें कि पूरी मूवी में वैसे कॉमेडी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मूवी को ना जबरदस्ती खींचा नहीं गया है, जैसे बहुत सारी मूवी करती है इसको 2 घंटे में ही खत्म कर दिया है। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती 2.5 घंटे 3 घंटे की मूवी मतलब बनाई गई है, उसको जबरदस्ती खींचा गया है। एक मतलब परफेक्ट जो स्टोरी होती है, परफेक्ट जो टाइमिंग होता है 2 घंटे, तो उसी में इसको खत्म किया गया। मतलब लेंथ फिल्म की उतनी है जितनी इसको जरूरत थी कहानी। और मतलब हम मूवी में 1 सेकंड भी बोर नहीं होते हैं, ये सबसे अच्छी बात है इस मूवी की। एंटरटेनिंग है फिल्म। हाँ। और मैंने कॉन्सेप्ट भी थोड़ा यूनिक सा देखा ना, कि कॉलेज में है, फिर वो मतलब ब्लैक मैजिक करता है, उसके प्रोफेसर फिर कोई बच्चा देखता है, फिर वो भी मतलब उस बोल्ड को लेना चाहते हैं, फिर उनकी बॉडी इंटरचेंज हो जाती है, फिर उस शादी का मन बदल जाता है कि मैं तो इसी की लाइफ जीऊंगा रंजीत की। तो काफी मतलब ऐसे है कि बहुत सारी चीजें हैं मूवी में। पर वो भी बहुत चालाक था। हाँ, वो बहुत वो रंजीत ना वो हाँ, तो बहुत क्लेवर था। वो जाना नहीं चाहता था अपनी बॉडी में वापस, क्योंकि उसे पता था कि मेरी बॉडी मतलब में प्रॉब्लम्स हैं, मैं बीमार हूँ। और उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी, फिर बाद में चली उसे पता। हाँ। तो मतलब काफ़ी अच्छी फिल्म है। और बाकी एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है। और मूवी में कॉमेडी है, स्टोरी अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी है, एक्टिंग भी सबकी अच्छी है। और बाकी जो डायरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो मतलब काफ़ी मज़ा आया फिल्म को देखने में। तो दोस्तों ये थी पैदक कलम फिल्म हमें काफ़ी पसंद आई है। आपको आज का अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी मूवी के साथ। आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।